live. Yeah, we're live. Hey guys, how are you? Thank you so much for listening to the previous podcast or LinkedIn live sessions. आज एक और नया podcast और LinkedIn live session we have. And I have today with me Nishant Vashne from Sprinkler, and he's the director of business development and sales, heading over there. तो आज उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि how he runs and leads the sales at this company, एंड ऑब्वियसली उनकी खुद की पर्सनालिटी के बारे में भी थोड़ा समझेंगे. एंड यू नो द ड्रिल. बिफोर वी गो हेड, कोई भी एक दो लोग अगर बता दें दैट यू कैन हियर अस, यू कैन सी अस, देन वी विल बिगिन विद दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट टुडे. And really really thankful to everyone who is joining and listening to this video. एंड निशान, मैंने ये जो कुछ डिस्क्रिप्शन जो लिखी होती है ना इंट्रोडक्शन, मेरे को लगता है थोड़ी सी बोरिंग होती है, राइट? तो मैं उसकी बजाय आप ही से पूछूंगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो. दैट वुड बी मोर मच बेटर फॉर द ऑडियंस टू लिसन इट फ्रॉम यू रादर देन मी ब्लैबरिंग सम इंग्लिश में वर्ड्स व्हिच पीपल मे नॉट इवन लिसन. तो तो आप ये बता दो सबसे पहले, लाइक हु इज निशांत. आप अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कर दो, and Mhm. then I'll begin, asking you questions about your journey so far. Okay, beautiful, beautiful. So thank you so much, Nitin, for you know, helping me being here, and I think thank you so much all the audience, who have decided to join us. Um, Now, as far as who Nishant is, very difficult. When people really hear this name Nishant, people think that hey, मतलब बंदा शांत होने वाला नहीं है, correct? मतलब बोलता ही रहेगा. बट आई थिंक इफ यू रियली लुक एट द वर्ड मीनिंग, जो मेरे नाम का Hmm. मतलब है, तो इट इज अ संस्कृत नेम, वर्ड निशा का अंत. सो निशा इज अ सिनोनिम फॉर नाइट, और घोर रात. तो हर रात के बाद Hmm. सवेरा होता है, तो हर रात के बाद एक निशांत होता है. सो Oh, दैट्स व्हाट निशांत प्रोबेबली स्टैंड फॉर. okay. अगर 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 कुछ लाइनें डिफाइन करती हैं मुझे, तो मतलब, और या मैंने आज तक जितना भी सुना है किसी लोगों लोगों से, तो आई एम समबडी हु विल नेवर बैक आउट ऑफ एनी सिचुएशन व्हाटसोएवर. मतलब मैं Hmm. एक ऐसा इंसान हूँ, एंड प्रोबेबली इट इज owing to probably my background also. I studied in राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल. तो मैंने वो जर्नी देखी है, शायद मैंने वो लाइफ एक जी है, कि मतलब what it is, what does it really means to be there for anybody, whoever you think can help us or you can play a role in. वाइल Hmm. वाइल ये बात मुझे पहले से ही पता थी कि शायद जब व्हेन आई कुडंट गेट इनटू आर्मी एंड व्हाटएवर, फॉर व्हाटएवर रीजंस, आई न्यू देयर वाज ओनली वन थिंग व्हिच आई न्यू और व्हिच आई वाज रियली ग्रेट एट, कि शायद आई कैन टॉक प्रोबेबली, करेक्ट. और that's when I decided that I should make up my career into sales. Hmm. And that's how the whole journey has been. I've sold managed services, I've sold technologies, I'm selling SaaS products now. So I've seen the whole transition of, एक समय पर जब ब्लैकबेरी एक क्रेज हुआ करते थे, इट यूज टू बी सिनोनिमस टू, मतलब बंदा वही एग्जीक्यूटिव है जिसके हाथ में ब्लैकबेरी है, करेक्ट. सो Hmm. आई सीन दोज डेज टू today's day, wherein India transition from a traditional economy to a pure mobile economy. So Hmm. that's how my journey has been. That's who I am probably. So I don't know whether I did justice to my introduction or not, No, but no, you that's did, what. you did. थोड़ा सा आप इसके अंदर ये भी बता दीजिए कि वेयर ऑल आप हो कहाँ से, वेयर आर यू Mhm. बेस्ड आउट ऑफ, एंड दूसरा, वेयर ऑल हैव यू वर्कड, इन व्हाट कैपेसिटी हैव वर्कड. Okay, so वैसे मैं रहने वाला, I belongs to place called Eta in UP. Hmm. मैं वहाँ से हूँ, but when I was 9 year old, I moved to Rajasthan. So that's when I really spoke about Rashtriya Military School. So I did my whole education from there, passed out, then decided to move to a city of dreams, Mumbai. That's where I did my IHM, went on to do my MBA. And that's when my whole corporate journey really started, correct. So my journey started with selling mobility solutions. Okay, I was selling
mobility solution to best of the organization across the world, selling to the C suite of the very best of the organization. And Crown is one of the most premium organization out there when it comes to mobility solution. So Hmm. first 6 years of my career was purely on driving sales or driving revenue for mobility solution services. Then I decided to move on to the tech world, and that's when ADP really happened. Correct. ADP Hmm. opened the door for me, and whatever I know today, probably I owe it to ADP, because ADP as an organization really gave me the chance to really understand how technology can really shape the world, or how it is shaping the world. Before ADP, I used to think that, hey, whatever we are doing right now in the traditional medium, no pun intended or no offense intended here, but somewhere I realized that my learning was stuck. And ADP created that foundation or groundwork for me to get into this beautiful industry which has no boundaries, which has no frontier, and the growth has no bounds whatsoever. So that's when the whole journey of my technology journey started with ADP. I moved on to Datamatics. Again, it's a huge name. Datamatics was Yeah. started by the first CEO of TCS. Correct. So it's a Hmm. it's a huge company based out in Mumbai. And then I moved on to Freshwork. Now I work with Sprinkler. So I think that's how my journey has been throughout across being into sales. I've worked in global markets. I've dealt with key accounts, global key accounts. My specialty always lies in Asia Pacific, while dealing with best of the possible brands out here. So that's how Hmm. my career, or that's how my journey has been all across. Okay, great. So, मतलब you mentioned your journey. अभी आप you finally are currently working at Sprinkler. थोड़ा सा if you could share more insights about what Sprinkler is and उसमें आपका normally role क्या रहता है? हम्म। I understand you may not go in deep into it, but जितना भी आप overview नहीं दे नहीं, सकते बिल्कुल हो that बिल्कुल would be बिल्कुल great. बिल्कुल Yeah, बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर नितिन। हाँ, सो yeah, स्प्रिंकलर, now let me do a proper justification when it really comes down to Sprinkler. What Sprinkler is as an organization, correct, and what we are really trying right. to achieve out here. Now, if you look at any enterprise organization, whether small or big, any organization which is here to do business, you will find that within an organization there are functions which are customer Hmm. facing and which are non-customer facing. For every Hmm. function within an organization, you require a technology to run that operation of that particular function. Now if you have five functions within the organization, you will have five different technology stack working together. And these technology stack do not speak with each other. And that's where Sprinkler vision or the product portfolio really comes into play. Now, what we are really trying to accomplish at Sprinkler, what we're really trying to say is, if we can unify if we can unify this if we can unify customer experience, in turn unifying employee experience, all this chaos which is created by these point solution can be ignored and can be taken away. And these point solutions are not only not only very costly, but this poses multiple risks, starting from data privacy to multiple things. So Sprinkler is trying to, and I think we are the first organization in whole of the world which can proudly say that we have the power to execute unified CXM vision across our product portfolio and any client we really serve. If you really look at our client portfolio, you'll see that we serve best of the best. 9 out of top 10 world's most valuable brands uses Sprinkler. So Hmm. that's the power of Sprinkler platform. And this is, so look, there are companies out there who thrive on vision, but we thrive on our ability to execute that vision in the real time, solving real time problems through Sprinkler AI, through cutting edge technology stacks, and solving that real time problem of unification for every enterprise out there. So that's what Sprinkler really does. And what do you do at Sprinkler?
Okay, so I think what I do. So I'm responsible. So I represent the GTM motion of Sprinkler, correct? Sprinkler Hmm. product portfolio for all the territories across the world. Now, Sprinkler have two different segments. That's how we divide our business into. So there is something Hmm. called there's something called large enterprise business, and there is something called enterprise business, correct? So I'm Hmm. responsible to drive GTM motion for enterprise business across all the territories in the whole of the world. So that's what my role is. ओके एंड मतलब आपने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है राइट एंड Mhm. करंटली आप जैसे स्प्रिंकलर में हो आपने डेटा मैटिक्स बड़ी बड़ी और भी कंपनीज में काम किया है सो मतलब डिफरेंस समझना चाह रहा हूँ मैं कि सेल्स तो आपने बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में किया है तो अभी एक यंग बडिंग कंपनी में अभी आप काम कर रहे हो पहले आपने थोड़ी सी और एस्टैब्लिश मोर प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनीज में काम किया है तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस कंपेयर नहीं कर रहा बट मतलब ओवरऑल आपको क्या एक सिनेरियो लगता है कि यार एक यंग एनर्जेटिक कंपनी में क्या डिफरेंस रहता है वर्सेस प्रोसेस ड्रिवन थोड़ा सा एस्टैब्लिश कंपनीज में कैसा रहता है आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा देखिए, आई थिंक नितिन इज एक्सीलेंट क्वेश्चन. डिफरेंस एज फार एज सेल्स इज कंसर्न, डिफरेंस सेल्स में नहीं है, लेकिन हाउ हम्म यू एग्जीक्यूट सेल्स प्रोबेबली उसमें डिफरेंस होता है. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, हम्म ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो. अब जैसे कि सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ. Nitin, sorry, you'll have to excuse me for this. Okay. नो प्रॉब्लम 1 second. I'm muting myself. या Okay. Fun of working at home, probably. Correct. या टोटली टोटली आई कैन अंडरस्टैंड So that's what I was saying. कि sales मेरे हिसाब से sales is an emotion. How you execute that emotion in different organization would probably differ, because problem, say for example, मैं आपको छोटा सा example देता हूँ. Let's take ADP as an organization. Now ADP हम्म is into a such industry which is highly regulated. तो हम्म आप जब आप सेल्स कर रहे होगे तो इट विल बी ड्रिवन बाय दोज रेगुलेशंस. ऐसा नहीं है कि हम्म आपको वो फ्रीडम नहीं है सेल्स करने की, लेकिन आई थिंक एवरी इंडिविजुअल, whoever is part of the sales, whoever is part of the sales, you know this is something which each and every sales individual has to understand कि वो किस इकोसिस्टम में काम कर रहा है. हम्म आपको एम्पावरमेंट है. यू कैन डिफाइन योर अकाउंट, आप अपनी टेरिटरी को अच्छा प्लान कर सकते हो. यू कैन क्रिएट अ ब्यूटीफुल जीटीएम मोशन, लेकिन वो हम्म एक इकोसिस्टम की परिधि, और देयर इज अ बाउंड्री टू द इकोसिस्टम विच यू कांट क्रॉस. और वो हम्म बाउंड्रीज डिफर करेंगी, चाहे आप ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे आप ऑनलाइन बॉर्न ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वट एवर नेम्स वी रियली कॉल बिजनेस नाउ डेज. तो केवल हम्म मेरे हिसाब से दिस इज द ओनली डिफरेंस व्हेन इट रियली कम्स डाउन टू हाउ द सेल्स डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. और डिफिकल्टी पता है सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कि आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो और आप ये नहीं समझ पाओ कि व्हाट इज दैट इकोसिस्टम, व्हिच इज हाउ दैट इकोसिस्टम इज बिल्ट, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ दिस इकोसिस्टम, व्हाट आर द बाउंड्रीज. और वहीं पर ही चैलेंजेस, व्हेन दैट्स व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट, कि यार मैं हम्म तो उस कंपनी में ऐसा कर पाता था और मैं हम्म यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर वहां तो कुछ नहीं था और यहाँ सब कुछ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. सो आई थिंक वी हम्म नीड टू अंडरस्टैंड कि वो इकोसिस्टम किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को या किस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है. क्या हम्म वो हाईली रेगुलेटेड इकोसिस्टम है, या वो बहुत लिबरल इकोसिस्टम है, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अलाउ करते हैं आपको उतना लिबरल होने के लिए. हम्म से फॉर एग्जांपल, आप अगर बैंकिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल लो, अगर आपको एक इंश्योरेंस सेल्स प्रोफेशनल फोन करता है, तो वो आपको लॉफ्टी प्रोमिसेस नहीं कर सकता. जो डॉक्यूमेंट में रिटर्न है वो फैक्ट एंड फिगर पर ही बात कर सकता है. वो हम्म आपसे फॉलो बहुत करेगा, क्योंकि हम्म उसके पास वो केवल एक वही ऑप्शन है कि वो आपको छोड़ेगा नहीं, हम्म लेकिन वो आपको गलत बात भी नहीं बताएगा. हम्म तो केवल मेरे हिसाब से दिस इज द ओनली डिफरेंस
in whatever little bit of career I have had, this is the only difference I see when I have moved organization all across. गॉट इट। तो मतलब डिफरेंस तो ये समझ में आ गया कि प्रोसेस इज ड्रिवन और किस बाउंड्रीज के अंदर रह के आप प्ले कर सकते हो। एक डिफरेंस आ जाता है मार्केट को लेके भी। लाइक फॉर एग्जांपल SaaS solutions बेचना is very different from other solutions that you normally would have sold previously। तो उसमें क्या challenges आपको लगते हैं कि स्पेशली when I talk about इंडियन मार्केट में SaaS का थोड़ा सा एक वैल्यू परसेप्शन थोड़ा रहता है, सॉफ्टवेयर ही दिया खुद बना लेंगे, यू नो, मतलब 2 बंदे लगा देंगे वो कर देगा ये, तो वो टाइम की वैल्यू लोगों को दिखती नहीं है। थोड़ा सा एक फैक्टर है मोर डेवलप्ड कंट्रीज में, यूएस में, यूके में, पीपल ऑब्वियसली पे फॉर बाइंग टाइम। हियर पीपल वांट्स टू जस्ट सेव मनी इंस्टेड ऑफ बाइंग टाइम। सो एक कंट्रास्ट मुझे लगता है कि मार्केट्स में है। तो आपका क्या ओपिनियन रहा है उसको व्हाइल डूइंग द सेल्स फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग? देखिए, आई थिंक मतलब पीपल, इफ यू मतलब आपने यू रीड अ लॉट, करेक्ट? आप कोई भी मतलब इफ यू जस्ट रीड अबाउट सेल्स, मतलब सेल्स इज 80% साइंस, और ये साइंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। ये जो आप कह रहे हो ना कि आप ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में जब आप बेच रहे होते हो, व्हेन यू आर सेलिंग इन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन, या आप एक मैनेज सर्विसेज बेच रहे हो इंडिया मार्केट में वीजा विज यूएस मार्केट में, तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बहुत सिंपल है। सेल्स, आप अगर आप आपका सेल्स एक्यूमेन और सेल्स माइंडसेट इंडियन कस्टमर के हिसाब से है, तो आप कभी यूएस में नहीं बेच पाएंगे। ओके। अगर आप यूएस के कल्चरल और मार्केट नुआंसेस समझते हो, तो वहां पर नो का मतलब नो है। यूएस में अगर उन्होंने ना कर दिया तो वो ना है। इंडिया में अगर मैं बेच रहा हूं, इफ आई एम अ सेल्स पर्सन इन इंडिया, मुझे पता है कि मैं ना को भी हाँ में बदल सकता हूं, और ये ना कभी भी हाँ में बदल सकती है और हाँ कभी भी ना में बदल सकती है। तो ये केवल और केवल एक माइंडसेट, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द मार्केट, और जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, इसका ना एक बहुत बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ। हम जब बचपन में थे तो हम गली क्रिकेट खेलते थे, करेक्ट? और हम सबको लगता था कि हमसे अच्छी क्रिकेट किसी को नहीं आती, है ना? करेक्ट। फिर क्या हुआ कि हमने किसी कोई, और आप पाओगे कि 100 में से 100 लोग ही उस टीम को परस्यू नहीं करते, चाहे वो अपने आप को राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर समझते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है कि उनकी उनकी सोच वहीं तक ही सीमित थी, गली क्रिकेट तक। ये सेम चीज, ये सेम फंडामेंटल अप्लाई होता है व्हेन यू लुक एट डिफरेंट बिजनेस। चाहे आप सेल्स बिजनेस को भी ले लीजिए, तो से फॉर एग्जांपल स्प्रिंकलर, करेक्ट? वी आर अ प्योर एंटरप्राइज, फुल ब्लोन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन। हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट को सर्व करते हैं। तो हमारे लिए हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटीज व्हेन वी आर सेलिंग इट टू द बेस्ट एंटरप्राइज, मतलब ये वो वाली बात हो गई कि मैं सीआईओ को जाके समझाऊं कि सर क्लाउड अडॉप्शन का मतलब क्या है ना? एक सीईओ को जाके बताऊं कि सर बैलेंस शीट बनती कैसे है। तो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम किस मार्केट डायनामिक्स में सेल आउट कर रहे हैं और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा प्रोडक्ट क्या वो एसएमबी को सर्व करता है, क्या वो मिड मार्केट को सर्व कर रहा है, क्या वो एंटरप्राइज को सर्व कर रहा है, या वो एक नीश मार्केट के लिए बना हुआ है। तो आई थिंक इट इज मोर, मतलब तीन चीजें की अंडरस्टैंडिंग वही डिफरेंस लाती है। क्या आप मार्केट नुआंस को समझते हो कि ये मार्केट ऑपरेट कैसे कर रहा है? अब से फॉर एग्जांपल मैं नॉर्थ इंडिया का सेल्स वाला बंदा हूं, नॉर्थ इंडिया की सेम प्रैक्टिस उठा के मैं साउथ इंडिया में लगा दूं, कभी काम नहीं करेगी। और वही ओके। चीज मैं ले आके वेस्ट इंडिया में चला जाऊं, तो इंडिया, विद इन इंडिया ही आप इतना डिफरेंस पालोगे। तो आप समझो, जब आप व्हेन यू आर लुकिंग एट अ ग्लोबल टेरिटरीज, चाहे वो आसियान कंट्रीज हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो, चाहे आपका पूरा का पूरा ईमिया मार्केट हो, और इवन इफ यू आर लुकिंग एट अमेरिकाज मार्केट और नॉर्थ अमेरिका मार्केट एज अ होल, नॉर्थ अमेरिका मार्केट में भी आप पाओगे कि मिडवेस्ट वर्क्स वेरी डिफरेंटली देन साउथ वेस्ट। तो ये अगर अगर हमको मार्केट की नुआंस, इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड द मार्केट नुआंस, और हम किस प्रोडक्ट को किस समय पर बेच रहे हैं और किसको बेच रहे हैं, यू विल ऑलवेज फाइंड द टसल। और यही यही एक डिफरेंस है हर ऑर्गेनाइजेशन। तो आई थिंक समवेयर वी ऑल नीड टू बी वेरी अकोमोडेटिव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थ्री थिंग्स। मतलब आई राइट। डोंट नो इफ आई आंसर्ड योर क्वेश्चन और नॉट, नो लेकिन नो, आई हैव अ फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दैट। डेफिनेटली यू आंसर इट वेल। सो अभी आपने बोला मार्केट नुएंसेस की बात करते हैं हम, राइट? अब मेरी, मान लो मेरी एक कंपनी है, मेरे को डिफरेंट डिफरेंट मेरे को स्केल करना है, आई वांट टू सेल
to different parts of the world. Now, how do I, as a company, understand the market nuances before I'm not culturally from there, right? मैं US से तो हूँ नहीं कि मैं एकदम से उसके और मुझे बिल्कुल। स्केल भी करना है. So, what is the best strategy as per you? कि क्या हमें लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स पकड़ने चाहिए, अफिलिएट पार्टनर्स पकड़ने चाहिए, लोकल चैनल पार्टनर्स पकड़ने चाहिए, या खुद की एक सेल्स टीम बिठानी चाहिए? मतलब आपको क्या लगता है, क्या बेस्ट तरीका रहता है, या आपके हिसाब से अगर आप होते इस जगह पे और आपको एक टास्क दिया जाता कि यार ये प्रोडक्ट है और जाके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में बेचना है, हाउ वुड यू गो अबाउट इट? इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, है ना? हम्म. और मैं मतलब रिलेटेबल एग्जांपल है। हम्म. आप एक लॉलीपॉप बनाते हैं, एक हम्म. कैंडी की दुकान खोलते हैं, हम्म. ठीक है? आप कैंडी के व्यापार को यू वांट टू टेक इट ग्लोबल, है हम्म. ना? कैंडी इज लव्ड बाय ऑल, सबको चाहिए। तो आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट तो पूरी दुनिया है। हम्म. करेक्ट है कि नहीं करेक्ट करेक्ट है. है ना? आपकी तो पूरी दुनिया, ऑल एज ग्रुप्स के जितनी भी डेमोग्राफिक्स हैं, एवरीबडी इज योर टारगेट ऑडियंस, क्योंकि किसी हम्म. ना किसी को किसी ना किसी तरीके की कैंडी पसंद है। हम्म. करेक्ट। लेकिन क्या मेरे पास वो कैपेसिटी है उस टोटल एड्रेसेबल मार्केट को एड्रेस करने की? हम्म. तो हम कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, मतलब वी गेट लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड कॉल्ड टैम, कि यार हम्म. आर वी कवरिंग टैम? हम्म. बात टैम की है ही नहीं, बात हम्म. है उस टैम के अंदर कितना कितना टैम जो सर्विसेबल है, आप हम्म. क्या रियल में सर्विस कर सकते हो। हम्म. पहले तो आप वो पता करो। तो आपने आपका कैंडी स्टोर है, करेक्ट? आपने कहा यार कि मैं 4 स्ट्रीट, से फॉर एग्जांपल 4 नहीं, आपका कैंडी स्टोर जनकपुरी से आपने शुरू किया, तो आपने बोला हम्म. मैं पश्चिम बिहार, रोहिणी ये सब कवर कर सकता हूं, हम्म. है ना? क्योंकि ये इतनी ही मेरी कवरेज है। ठीक हम्म. है, तो अब आपको पता चल गया कि ये मेरा ऑब्टेनेबल मार्केट है, समझे? अब दूसरी इसमें तीसरी कड़ी आती है कि आप अकेले तो कैंडी बना नहीं रहे हैं, हम्म. मार्केट तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप रियल में जो ऑब्टेनेबल मार्केट है उसमें से कितना आप अपने पास ले सकते हो। हम्म. प्रॉब्लम तब होती है कि जब हम ये दो एक्सरसाइज नहीं करते हैं और केवल टाइम को देखते रहते हैं, कि यार से फॉर एग्जांपल नितिन, मैं आपकी ही बात कर लेता हूं, करेक्ट? ठीक हम्म. है, इजी लीड्स, लीड सबको चाहिए, करेक्ट? ऐसी हम्म. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लीड्स नहीं चाहिए? हम्म. ठीक है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बात करो, सबको लीड्स चाहिए, या. लेकिन क्या आप सबको सर्व कर सकते हैं? नो, ऑफ कोर्स नॉट. आप नहीं कर सकते हैं। तो आपने दूसरी लेयर की एक्सरसाइज की कि यार मैं किसको हम्म. रियल में सर्व कर सकता हूं, और हम्म. आपको यह भी पता है कि मेरी यूएसपी किस तरीके की लीड जनरेट करने में है, हम्म. मैं किस तरीके के पर्सोना पर 100% गारंटी दे सकता हूं। हम्म. तो आपने क्या किया, आपने अपना ऑब्टेनेबल मार्केट पता कर लिया। अब आप अपने कंपटीशन को भी देख रहे हो, ऐसा तो है नहीं आपने, आई नो, आई हैव नोन यू, आई हैव फॉलोड यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मुझे पता है कि यार यू स्टार्टेड आउट, जहां आपके पास पहला क्लाइंट आपने लिंक्डइन पे लिखा था कि यार फर्स्ट पेइंग क्लाइंट आई हैव ऑनबोर्डेड हम्म. आफ्टर अ ईयर ऑफ स्ट्रगल, करेक्ट? तो राइट. आपने, आज आपके पास जितने भी क्लाइंट हैं, ऐसा तो है नहीं कि आज आप जिस जिस पोजीशन पर बैठे हैं आपने पूरा मार्केट खत्म कर दिया, या जो हम्म. ऑप्टेनेबल मार्केट था वो पूरा आपने ले लिया, ऐसा तो है नहीं ना। एक हम्म. पाई आपने ले ली, और आप उसको हम्म. कैसे बढ़ाओगे और वो कैसे श्रिंक होगी, ये अब आपके ऊपर है। हम्म. तो आपका जो सवाल है ना कि मार्केट नुआंस मार्केट नुआंस, लोग केवल टैम में ही गुम हो जाते हैं। हम्म. लोग ये भूल जाते हैं कि मेरा ऑप्टेनेबल और मेरा सर्विसेबल एंड ऑप्टेनेबल मार्केट है क्या। राइट. नहीं, अगर ये आपकी दो, बात सही है. हाँ, मेरा इसके ऊपर क्वेश्चन जो फॉलो अप है वो ये है कि मान लो मैंने अंडरस्टैंड कर लिया कि यार हमारा इंडिया हो गया, तो मैं अपनी बात कर लेता हूँ जैसे, ठीक है, कि अभी तक हम इंडिया में मेन फोकस कर रहे थे, अब हम मान लो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम यूएस जाना चाह रहे हैं, ठीक है, हमें हमें पता है कि हम यूएस को भी सर्व कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट वहां भी चलता है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी बाइंग इट फ्रॉम यूएस, बट वी हैवंट फोकस्ड एंड स्केल्ड आवरसेल्फ इन यूएस, लेट्स से. तो एज अ कंपनी आपका क्या रिकमेंडेशन रहता है फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कल्चरल नुआंसेस ऑफ यूएस मार्केट? शुड वी एज अ स्टार्टअप नॉर्मली, बिकॉज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि बहुत सारे जो लोग सुन रहे हैं उसमें ऐसे काफी लोग होंगे जिनको एक्सपैंड करना है, एक्सपोर्ट करना है, बाहर की मार्केट्स में फोकस करना है. फॉर देम आई वांटेड टू आस्क यू एसेंशियली दैट हाउ डू यू रिकमेंड कि to go about building a good market in a company or in a country wherein you were not originally a part of?
देखिए तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं इसके लिए, बहुत सिंपल। सो लेट्स, आप नितिन आप ही का एग्जांपल ले लेना, इजी लीड्स। आप, हम्म, मेरा सबसे पहला काम होगा कि मेरा नियरेस्ट कंपटीशन यूएस में जो सेम बिजनेस मॉडल पर ऑपरेट करता है वो कैसे कर रहा है। आर हम्म, दे थ्रू चैनल पार्टनर्स और दे हैव हम्म, क्रिएटेड देयर ओन टीम। हम्म, तो पहले तो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड माय कंपटीशन बेटर, क्योंकि ओके, अगर मैं कंपटीशन के प्ले को समझ पा रहा हूं तो मैं, आई एम बीइंग वेरी ऑब्जर्वेंट अबाउट इट। हम्म, ऑब्जर्वेंट मतलब मैं उस चीज को भी देख पा रहा हूंगा कि कहाँ वो गलत हो रहे हैं और कहाँ वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम्म, जहां वो गलत हो रहे हैं वहां वो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, और हम्म, जहां वो सही कर रहे हैं, अडॉप्शन, अडॉप्शन कोई बुरी चीज नहीं है। वी विल हम्म, अडॉप्ट द बेस्ट ऑफ द प्रैक्टिस। अगर आपको लगता है कि दे हैव बीन अ ग्रेट सक्सेस, आप उन्होंने अगर हम्म, सक्सेस देखी है, तो इट इज ओनली थ्रू चैनल एंड अलायंसेस। स्टार्ट हम्म, बिल्डिंग आउट अलायंसेस, हम्म, अलायंसेस, अलायंसेस विद द सेम सेट ऑफ पीपल। अलायंस, आपका जो पहला अलायंस होना चाहिए वो हम्म, विजन पर होना चाहिए, ना कि रेवेन्यू पर। हम्म, प्रॉब्लम क्या होती है, when we get into a newer market we only worry about revenue, हम्म, we forget the larger picture of it। larger picture क्या है कि यार, do you believe in my product, the हम्म, partner, if you are decided, if you have decided to partner with me, do you have that belief in my product that I can deliver the promises which I am making here in India, the same promise I can deliver it in US। क्या वो हम्म, पार्टनर एग्री करता है, क्या वो बिलीव करता है? तो उस, when you start with that belief, you will see that you will start understanding the market nuance, क्योंकि तब तब you will have the real time feedback about your product। नहीं तो क्या होता है, majority of the cases मैंने देखा है कि people end up only looking at revenue, और आपका हम्म, पार्टनर बोलता है कि आप तो मेरे ऊपर कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, ना आप हम्म, मेरे लिए कुछ वेबिनार कर रहे हैं, ना आप मुझे प्रमोट कर रहे हैं, आप मुझे कुछ कर ही नहीं है, व्हाट्स इन इट फॉर मी। हम्म, तो हैव यू आंसर्ड दैट क्वेश्चन फॉर योर पार्टनर? ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि क्या मैं इंडिया से बैठकर कैन आई सेल इन टू यूएस मार्केट? दैट इज द हम्म, सेकेंड वे टू रियली लुक एट इट। तो वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, देन वी नीड टू हायर अ वेरी डिफरेंट सेट ऑफ पीपल। प्रॉब्लम क्या हम्म, होती है कि मैंने एक इंडिया, जिसने इंडिया में बेचा है, मैं ये हम्म, नहीं कह रहा हूं कि वो माइंडसेट बदल नहीं सकता, बिल्कुल बदल सकता है, ठीक है। हम्म, लेकिन आप पहले दिन से ही, अगर आप एक सेल्स प्रोफेशनल जिसकी स्पेशलाइजेशन इंडिया मार्केट थी, आप उसको बोल दो कि यार कल से यू हैव टू डायल यूएस, वो अभी हम्म, भी इंडिया की तरह ही ऑपरेट कर रहा होगा। हम्म, उसको उसको ऐसा लग रहा होगा कि इसकी ना में भी हाँ है। हम्म, तो करेक्ट, ये जो दो चीजें हैं ना में हाँ और हाँ में ना, अगर हम हम्म, यही समझ जाएं, विजन, क्या कोई आदमी हमारे साथ, एनीबडी, एनी इंडिविजुअल, आर दे कमिंग टू, आर दे पार्टनरिंग विद अस ऑन द पावर ऑफ आवर विजन, और ओनली सिंपली ड्यू टू देयर इज अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व? हम्म, दूसरी, the people who are there, who are doing the job day in day out, do they understand, do they carry that mindset of learning and probably relearn everything for that particular market? वहीं पर ही सबसे बड़ा चैलेंज आता है। एनी गो टू मार्केट, एनी कैंपेन यू डिजाइन, एंड आई विल गिव यू अ वेरी क्लासिक एग्जांपल, करेक्ट? आप इंडिया में, यू लुक एट, सो आई एम श्योर नितिन, अगर आप यूएस के किसी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और इंडिया में हम्म, किसी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, यू विल फाइंड अ टू मेजर ग्लेरिंग डिफरेंसेस। इंडिया विल हैव लॉट ऑफ कंटेंट टू इट। हम्म, यूएस यूएस का न्यूज़लेटर विल हैव लॉट ऑफ लॉट ऑफ लिंक्स टू इट, बिकॉज दे हम्म, वांट यू टू गो फर्दर। हम्म, और इंडिया के न्यूज़लेटर में सब कुछ, उस न्यूज़लेटर में वी वांट टू पुट इट इन दैट न्यूज़लेटर इटसेल्फ। हम्म, लेकिन यूएस वाले कह रहे हैं, यूएस का ब्लॉग का न्यूज़लेटर कह रहा है कि यार मेरे शब्दों पर मत जाओ, यहां देयर हम्म, इज अ लिंक। सो यू विल फाइंड इवन अ वर्ड इज हाइपर लिंक टू अ सर्टेन पोस्ट और सर्टेन आर्टिकल। तो राइट। ये डिफरेंस, तो व्हेन इफ आई एम अ यहाँ मार्केटर, यहाँ यहाँ नहीं होता है, आप हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर मैं मार्केटर हूं, अगर, और हम्म, अभी तक मैंने केवल इंडिया के लिए ही कैंपेन डिजाइन किए हैं, और आप हम्म, मुझे बोल दो कि भैया आप यूएस के लिए कर दो, मैं तो इंडिया हम्म, वाला कैंपेन यूएस में चिपका दूंगा सर। और फिर आप बिल्कुल, पूछोगे कि यार निशांत,
यार मैंने तो $800 दिए थे वहां पे एक लीड एक्वायर करने के लिए यूएस में, है ना? हम्म। लेकिन रिजल्ट तो कुछ आया नहीं। कैसे हम्म। आएगा सर? जब आपकी हम्म। इनपुट ही इंडिया वाली थी, तो आप यूएस का आउटकम कैसे समझ सकते हो? मतलब हाउ कैन यू हम्म। रियली एक्सपेक्ट कि वो यूएस वाला आउटकम आएगा? हम्म। तो ये तीन मेजर डिफरेंस मुझे दिखते हैं कि आपका कम्युनिकेशन हर मार्केट के हिसाब से बदलना चाहिए। हम्म। और वो जैसे ही as soon as as soon as you change this communication in the market you really want to conquer, you will find that you will start getting those early success which would validate your belief that you can win this market. हम्म। वो वहां से शुरू होता है। अगर आप यूएस के पार्टनर से या ईमिया के पार्टनर से जाके आप इंडिया के पार्टनर की बराबर की बात करो कि यार मैंने तो हम्म। इंडिया में इतने पार्टनर हैं, वो तो मुझे इतना धंधा दे रहा है, आप भी मुझे हम्म। इतना दे दोगे क्या? तो हम्म। बोलेगा यार मेरे लिए क्या है इसमें? आप हम्म। एक काम करो, लीड दे दो, मैं क्लोज करता रहूंगा। तो हम्म। बात तो बराबर ही हो गई ना सर फिर भी। हम्म। चाहे आप ना कैसे पकड़ लो चाहे वैसे पकड़ लो, बात तो बराबर ही हो, काम तो आप ही को करना पड़ा। हम्म। और आप उसको यू विल एंड अप गिविंग कट आल्सो। लेकिन अगर राइट। आपका विजन और कम्युनिकेशन उसकी कल्चरल एंड मार्केट नुआंस से सिंक होता है, तो वो कहेगा कि नितिन आप छोड़ो, आप ये बताओ कि यार मैं कब लॉन्च कर दूं, मैं हम्म। लगाता हूं, मैं पूरी दम लगा दूंगा टू गेट यू दोज क्लाइंट्स। हम्म। So then that guy, that partner, that GTM agency, that agency will be driving your success. They will be your brand ambassador in that particular market. हम्म। तो आई डोंट नो, मतलब लॉन्ग आंसर शॉर्ट, मतलब तीन चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब व्हाट इज योर कम्युनिकेशन, व्हाट इज योर विजन, एंड व्हाट इज द माइंडसेट विद व्हिच यू आर रियली गोना गो एंड एग्जीक्यूट दिस विजन एंड कम्युनिकेशन। हम्म। ग्रेट। इस पे मुझे अब मार्केट की बात कर रहे हैं, हम इंडिया में आता हूँ वापस अभी। ठीक है, तो हमने हम आप सॉल्यूशंस बेचते हो, SaaS कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आई एम श्योर एंटरप्राइज को जब आप बेचते हो तो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स होते होंगे नॉर्मली। बिल्कुल यू बिल्कुल। नो इट वोंट बी अ मंथली काइंड ऑफ अ थिंग, नॉर्मली आप ईयरली से नीचे तो कोई कोई फायदा ही नहीं है सेल करने का। हाँ। तो अब हम आ जाते हैं इंडिया में, खासकर मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है, विच आई एम श्योर आप उस पर थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर पाओ, बता पाओगे, इनसाइट शेयर कर पाओगे। जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला होता है ना, यू नो द टेंडेंसी ऑफ द पर्सन ऑन द अदर हैंड कि यार हमारा तो यूज ही नहीं हुआ, मतलब उनके जो फीडबैक होते हैं वो नॉर्मली थोड़े से नेगेटिव तब आने जाना चालू हो जाते हैं जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट ओवर होने वाला होता है एंड रिन्यूअल डेट पास आ रही होती है, और उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है कि मैं रिन्यूअल की डेट को कैसे 2 महीने और 3 महीने एक्स्ट्रा ले पाऊं विदाउट हैविंग एनी इश्यूज। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती है, जस्ट बिकॉज दे वांट कि फ्री में कुछ 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाए या 2 महीने का कुछ एक्सटेंशन मिल जाए। सो एंड यू नो इन द बैकग्राउंड ऑफ योर स्टोरी दैट देयर वाज नथिंग रॉन्ग, एवरीथिंग वाज good. It's just that the customer has this expectation wherein they just want their validity or contract to be extended for no reason, you know तो आप उन वो situations आपके साथ हुई है? If yes, how do बिल्कुल you नहीं, handle those situations and how do बिल्कुल you, नहीं। मतलब क्या strict रहते हो आप उस टाइम पे? What नहीं do you नहीं do? नहीं। देखिए सर ऐसा है, मैं बिफोर आई कमेंट ऑन द कस्टमर पीस ऑफ इट, Yeah. थोड़ा हमको भी ना ब्लेम लेना पड़ेगा एज अ सेल्स प्रोफेशनल। और इसमें मैं हाँ। मतलब मेरे को कोई मतलब होता ना कि आई हैव नो शेम इन इट इन एडमिटिंग। पता क्या होता है हम्म। जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एज अ सेल्स हम्म। प्रोफेशनल, और प्रोबेबली आई एम आल्सो गिल्टी ऑफ दिस, ठीक है? हम्म। लेकिन हैप्पी रियलाइजेशन, नाउ आई रियलाइज कि प्रोबेबली देयर वाज अ फार बेटर वे टू डू थिंग्स। हम्म। जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो और कॉन्ट्रैक्ट लाइव कर दिया आपने, सेल्स हम्म। वाला हाथ ऐसे छुड़ाता है हम्म। कि यार अब तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हम्म। 12वें महीने में मैं सोचूंगा जब ये रिन्यूअल पर आएगा, रिन्यूअल पे आया तब है देखेंगे ना? क्या करना है। तब हाँ। देखेंगे। वही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हम्म। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, कस्टमर तो बाद में कंप्लेन कर रहा होता है, ठीक है? हम्म। अब मैं आप तो अब सबसे पहली बात, एज हम्म। एनी सेल्स प्रोफेशनल, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आई एम श्योर यू हैव मेड प्रोमिसेस टू अ हम्म। सर्टेन सेट ऑफ इंडिविजुअल, और वो हम्म। प्रोमिसेस इज ऑन बेस्ड ऑन अ प्रमाइस कि आपका कंजम्पशन इस हम्म। परसेंटेज पर होगा। हम्म। अगर अगर ये तो वो वाली बात होगी कि सर मैंने लिंक्डइन सेल्स स्नैप ले लिया, है ना? हम्म। क्योंकि मैंने पता है लिया क्यों है? क्योंकि हम्म। वहां पर मुझे वो गोल्डन वाला आइकन दिखना चाहिए बस, हम्म। है ना?
और रिन्यूअल के समय पर मैं जाके बोलूं लिंक्डइन वालों को कि हम्म। यार मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, हाँ, यूज ही नहीं किया मैंने तो। हमने तो यूज ही नहीं किया, आपने तो हाँ। फालतू के डॉलर चार्ज चार्ज कर लिए हमसे, है ना? हम्म। अब तो एक काम करो यार, फ्री व्री दो कुछ। हम्म। अब आप मेरी बात समझ रहे हो? हम्म। तो पहली बात तो जो सेल हुई थी ना, हम्म। वो एक गलत प्रमाइस पर हुई थी। हम्म। क्लाइंट को, कस्टमर को केवल वो लोगो चाहिए था, तो वो तो हम्म। मैं लिंक्डइन प्रीमियम दे देता, वो लोगो आ जाता गोल्डन कलर हम्म। में, है ना? हम्म। लिंक्डइन प्रीमियम वन, आई थिंक वन थर्ड ऑफ द कॉस्ट में है लिंक्डइन सेल्स नैव के। हम्म। ठीक है? तो हमको माइंडसेट पढ़ने की भी जरूरत है कि क्लाइंट को रियल में कितना चाहिए। अब हम्म। मतलब आप एक बात बताइए, आपने देखा होगा बहुत सारे फूड ब्लॉगर, ये दारा सिंह की थाली, यार हम्म। एक बात बताओ, ये तो वो वाली बात होगी, मैंने दारा सिंह की थाली रख दी, ठीक है, हम्म। जो बंदा 4 रोटी खाता है दिन की, ठीक है, हम्म। अब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार वो पूरी थाली भी खा लेगा और आपको हम्म। रिव्यूज भी बेहतरीन लिख के जाएगा। सर ऐसा हम्म। कहीं नहीं होता। तो हम्म। कहीं ना कहीं, कहीं और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद गिल्टी रहा हूँ इस चीज़ का, क्योंकि हम्म। हम कहीं न कहीं उस चीज़ में भाग रहे हैं कि यार मेरे नंबर हो जाए, मेरे हम्म। कोटे रिटायर हो जाएँ, ठीक है? हम वो माइंडसेट कभी पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब आ हम्म। जाता हूँ मैं कस्टमर साइड पर। अब हम्म। आप एक समझिए, कस्टमर्स, आप ये पाएँगे कि कोई-कोई कॉन्ट्रैक्ट ना एक ही दिन में क्लोज़ हो जाता है। हम्म। क्योंकि क्योंकि पता है क्या होता है? बॉस के बॉस का फ़ोन आ गया होता है कि मुझे नहीं हम्म। पता, ये हम्म। सॉल्व हो जाना चाहिए आज। हम्म। तो दादा क्या करते हैं, कस्टमर, कि भैया जो पहला बंदा आया कि भैया तू कर देगा ना? हाँ, कर दूंगा। हम्म। ठीक है, हम्म। ले आज चेक ले जा। हम्म। ठीक है, अब क्या हुआ, ना भाई ने प्रोडक्ट समझा, हम्म। ना उसको कभी इस्तेमाल करने के लिए केवल पेपर पे एक टूल होना चाहिए, तो हो हम्म। गया। हम्म। अब ये बात उसने हमें तो बताई नहीं, हम्म। ठीक है? और हम भी भूल गए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद कि यार ये हम्म। तो कंज्यूम ही नहीं कर रहा कोई भी फीचर फंक्शनैलिटी, हम्म। कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहा। तो अब हम्म। आप पाओगे, मैं अब ट्रेंड बता रहा हूं आपको, प्रोबेबली हम्म। आंसर नहीं दे पाऊंगा कि क्या करना चाहिए, लेकिन अब आप पाओगे सारी सेल्स कंपनीज में सबसे बड़ी मैट्रिक बन गई है कंजम्पशन फ्रॉम द डे जीरो। अगर हम्म। इफ आई हैव सोल्ड अ प्रोडक्ट, इफ आई हैव सोल्ड अ हम्म। SaaS प्रोडक्ट, what is the हम्म। consumption and how it is moving forward? हम्म। कोई भी if any customer which is using 60% and above, consuming हम्म। 60% and above, that means they will stick, the stickiness of the customer will be far better than anybody हम्म। using less than 60%. हम्म। So this has become one of the major metric, and the whole world is talking about it. There's the हम्म। reason you will see that customer success as a team has become one of the most critical team to have within any SaaS organization, हम्म। करेक्ट। apart from sales and apart from GTM motion. Retention So, obviously is a major part of it. yeah, Retention and and success. it is not about retention alone, correct? Consumption. Look, if Right. if 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 I am used to a certain tea, correct, and I consume it on a daily basis, हम्म। let me assure you, my stickiness to that tea brand will be हम्म। very high. Even if you Right. give me any other tea, even if you treat me at Starbucks or if you take me to any chai point, I will say, hey, हम्म। I will go back to my tea, क्योंकि उसमें जो हम्म। मजा है वो किसी में नहीं है। किसी में नहीं है। तो राइट। वो जो रोल है कंजम्पशन का, रिटेंशन तो आप बाद में करेंगे, क्या हम्म। पहले आपने कंज्यूम करवा पाया, क्या हम्म। आपने वो स्टॉक सप्लाई की, क्या आपने क्लाइंट को समझाया कि why you need to consume these features and functionality within your platform, why हम्म। it is important, how it will deliver that kind of ROIs. हम्म। तो ये ट्रेंड है, और पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो आपने सिनेरियो बोला मुझे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, केवल और केवल आप अगर कंजम्पशन पर डे जीरो से ध्यान दें, तो हम्म। प्रोबेबली ये सिचुएशन, और इंडिया में भी सर बदल रही हैं चीजें। हम्म। मतलब मैं आई स्पीक विद पीपल, आई माय टीम स्पीक्स विद मल्टीपल क्लाइंट्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है? आई सी मेजर शिफ्ट हैपनिंग इन पीपल्स माइंडसेट. We are हम्म। no more, I think there, after within in next 5 or 10 years, we will not be a price sensitive economy, but we हम्म। will be a highly value driven economy. हम्म। And people will ask value on day zero itself, okay, what हम्म। you were able to deliver me from the day one.
Hmm. So that's how India as a country is evolving, and this is Hmm. what this is what makes this country very very unique. Hmm. Got it. सही है सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस अप्रोच एंड आंसर्स टू इट। अब मैं आ जाता हूँ कुछ आपके टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स पे, जो आप हम सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे हैं। हाउ डू वी मेक श्योर किस टाइप के टूल्स या सॉफ्टवेयर्स आप यूज करते हो या आपने यूज किए हैं पहले? ए फॉर लीड जनरेशन, बी फॉर इंश्योरिंग कि ये जो आप सक्सेस की बात कर रहे हैं, कि हम सक्सेस करवा पाए अपने कस्टमर्स को। I know a lot of things would be custom built specific to the business needs and use cases, but there will be availability of such softwares and tools that normally would help you कि quickly adapt कर पाएं और उसको हम use कर पाएं। तो कुछ ऐसे टूल्स या सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप लीड जनरेशन, सेल्स या बीडी में यूज करते हो, जो आपको काफी हेल्पफुल हुए हैं? देखिए, ओके, मैं बहुत सारे पोल्स देखता हूँ लिंक्डइन पे। इज कॉलिंग हम्म। डेड, इज ईमेलिंग डेड। देखिए सर, हम्म। ऐसा कुछ भी चीज डेड नहीं हुई है। हम्म। ठीक है, अगर आप चीनी ज्यादा खाएंगे जिंदगी में तो शुगर हो हाँ। ही जाएगी। हाँ। बहुत सिंपल सी बात है। तो हाँ। आप एक ही चैनल पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, पहले तो हम्म। मतलब। एंड और इसके पीछे एक रीजन है कि मैं टूल्स आप क्यों चूज करने चाहिए, मतलब हम्म। हाउ यू शुड आइडेंटिफाई द राइट सेट ऑफ टूल्स। हम्म। अब से फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आपका मार्केट है, यूएस। हम्म। ठीक है, और आपका ऑपरेशंस है इंडिया में। हम्म। आपने क्या किया? आपने इंडिया आपने बेस्ट ऑफ द टूल्स नहीं दिए बच्चों को, जो हम्म। लैग नहीं करेंगे जब आप कॉल हम्म। करोगे, है ना? हम्म। जिनमें सारी फंक्शनैलिटी। आपने क्या किया? आपने एक टूल दे दिया कि यार इससे बस काम चल जाएगा, कॉल लग जाएगा, एंड हम्म। यू आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। सर हम्म। वैसा नहीं हो सकता। हम्म। आप अपनी टेक स्टैक, आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, उसके गोल के साथ आपको अटैच करनी पड़ेगी। हम्म। आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आपको लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर क्यों चाहिए? हम्म। क्योंकि सारी सेल्स कंपनी, सारी सेल्स प्रोफेशनल इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए मुझे सेल्स नेविगेटर चाहिए। तो सर ऐसी बात है, एक कहावत है कि अ फूल विद अ टूल इज स्टिल अ फूल, है हम्म। ना? तो आप कितने भी टूल दे दीजिए किसी को भी, हम्म। if if you don't know how to use that tool and how to optimize that tool, you will never be able to get anything out of it. हम्म। तो अब रही बात कुछ टूल्स बताने की। देखिए, हम्म। मेजरली मेजरली आपके पास एक बेहतरीन टेलीफोनी सिस्टम होना चाहिए। मैं कुछ नाम नहीं लूंगा, लेकिन यू शुड हैव अ वर्ल्ड्स बेस्ट क्लास टेलीफोनी सिस्टम। ओके। अगर इफ यू आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ इंडिया, है ना, हम्म। please ensure that all your sales professional have official number given to them and they are हम्म। not asked to dial from their personal mobile number. हम्म। एक ऑफिशियल नंबर विद विद अ वर्किंग फोन। ऐसा ना हो हम्म। कि फोन ही हैंग हो जाता हो, केवल वहां हम्म। पे पैसे बचाने के चक्कर में 5,000 रुपए का फोन दे दिया। ठीक है, हम्म। तो वहां से शुरुआत करते हैं, जो बेसिक है। हम्म। बेसिक टूल्स, एक बेहतरीन टेलीफोनी सिस्टम। यू शुड हैव अ सीआरएम। हम्म। एक सीआरएम होना चाहिए जहां पर आपकी, अगर से फॉर एग्जांपल इफ योर एक्टिविटीज आर प्राइमरली ओनली ऑन कॉल, or हम्म। if you are a social, if you drive your sales only through social media, then हम्म। buy that crm which integrates with social media itself. Don't buy राइट। any generic crm। राइट। तो सीआरएम सॉर्टेड है, तो आपका जो सेल्स प्रोफेशनल है, दे विल फाइंड इट वेरी वेरी इजी हम्म। टू रिकॉर्ड देयर एक्टिविटीज। और राइट। आपको भी एज अ मैनेजमेंट और एनीबडी फॉर दैट मैटर, आपको भी वो रिपोर्ट्स बहुत सही दिखेंगी। हम्म। आप उस सीआरएम को हेट नहीं करोगे। हम्म। तो सीआरएम सॉर्टेड। देन यू नीड अ प्रोस्पेक्टिंग टूल। अब से फॉर एग्जांपल, मैं एक बहुत छोटी कंपनी हूं, ठीक हम्म। है, मैं नितिन के पास आता हूं कि नितिन, यार मैं इंफ्रा नहीं लगा सकता, हम्म। है ना, मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे दो कंसियाज डेस्क बना दूंगा, आप मेरे लिए लीड जनरेट करो। ये दो कंसियाज डेस्क क्वालिफाई करेंगी उन लीड को। एक तो ये हम्म। ऑप्शन हो सकता है कि आप हम्म। सब कुछ आउटसोर्स कर दो, जिसको ये पता है कि उस इंडस्ट्री में लीड कैसे जनरेट होती है। हम्म। या फिर
या फिर आप एक कंसल्टेंसी हायर करो, या फिर आप एक एक्सपीरियंस्ड बंदा हायर करो जो उस इंडस्ट्री से आता है, उसने वो किया है. अलाउ हिम और हर टू सेट अप द इंटायर ऑपरेशन हम्म इकोसिस्टम विदाउट आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस. हम्म क्योंकि क्योंकि फिर अगर आपने हायर तो कर लिया, करेक्ट, लेकिन आप बोलो कि अब तो हम आपको ले आए, अब तो नंबर डिलीवर कर दो. अरे, हम्म आप लाए थे मुझे बनाने के लिए, पहले हम्म बना तो लेने दो. बनाने के लिए आई विल हैव टू, मतलब मेरे को गैस भी लानी है, मुझे बर्तन भी लाने हैं, मुझे हम्म आई नीड टू बाय वेजिटेबल्स, और मुझे जो भी बनाना है वो पहले मीज़ा प्लान तो मैं कर लूं, तब तो मैं हम्म आपको कुछ बना पाऊंगा. तो वो लिबर्टी भी बहुत जरूरी है. तो टूल्स मेरे हिसाब से कंपनी को अपने प्रोडक्ट लाइंस के थ्रू ही खरीदने चाहिए. हम्म तो टूल्स, सारे टूल्स, इफ यू जस्ट लुक एट इट, ठीक है नितिन, आप तो इसी इंडस्ट्री में हैं, करेक्ट, स्पेशली इन बी टू हम्म बी लीड्स. आप आपके पास भी रिक्वेस्ट ऐसी आती होंगी जब आप भी हंस जाते होंगे कि यार क्या बात कर रहे हो सर आप, है ना. हम्म ठीक है, चाहे वो कॉस्ट रिलेटेड हो, चाहे वो या लीड क्वालिफिकेशन की हो, कि नहीं सर हम तो लीड को ये कहते हैं, ठीक है, और हम्म आपकी डेफिनेशन में वो लीड सबसे महंगी वाली लीड होगी, लेकिन वो कहना है सर हम्म ये तो आप नंबर ही तो दे रहे हो हमको, आपने किया क्या इसमें, हाँ है ना. राइट तो ये समझ भी बहुत जरूरी है. जो ये समझ नहीं ला सकता सर, वो आप पाओगे, वो जीटीए मोशन, वो लीड्स के पीछे हमेशा पागल होगा, उसको कभी हम्म लीड्स नहीं मिल रही होंगी. हम्म इसीलिए लीड्स हैव बिकम अ मेजर मेजर प्रॉब्लम. हम्म तभी आप स्पैम, तभी आप पाओगे कि आपके मार्केटिंग ऑटोमेशन सिस्टम की जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो स्पैम हो स्पैम जाते हैं स्कोर विद इन बहुत ज्यादा है उसका या विद इन विद इन 30 डेज. आपका वो डोमेन ही स्पैम हो गया, हम्म करेक्ट. तो आप डोमेन ही ढूंढते रहते हैं कि यार मैं किससे हम्म राउट करूं अपना कैंपेन. तो आई राइट थिंक वी नीड, और ये प्रॉब्लम पता है कहां से आती है, जब आपने वो चेक एंड बैलेंसेस अपने टूल्स में बनाए ही नहीं है, हम्म कि यार मेरा कम्युनिकेशन, इंडिया का कम्युनिकेशन यूएस में नहीं जा सकता, हम्म और यूएस का कम्युनिकेशन इंडिया के लिए कभी बना ही नहीं है, क्योंकि हम्म कंजम्पशन नहीं होगा उस कम्युनिकेशन का. और अगर राइट उस कम्युनिकेशन का कंजम्पशन नहीं होगा तो कोई समझेगा नहीं, और कोई हम्म समझेगा नहीं तो कोई आपसे बात क्यों करेगा सर. हम्म तो ये करेक्ट बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग टूल्स की ये है मेरे हिसाब से. तो आप टूल्स हम्म वही खरीदिए जो आपका बिजनेस, जो आपकी टीम चाहती है. टूल वो मत खरीदिए जो मैनेजमेंट चाहती है. हम्म गॉट इट एक लास्ट क्वेश्चन है बस ऑलमोस्ट हम 50 मिनट्स हो गए हैं हमारे क्रॉस बस 1-2 मिनट का एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा आपका फेवरेट सेल्स मैं बोलूंगा अप्रोच नॉर्मली क्या रहता है आजकल प्रोडक्ट लेड ग्रोथ के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं हम्म. और वर्सेस सेल्स ड्रिवन अप्रोच जो रहती है टिपिकल तो व्हाट डू यू प्रेफर मोर कि प्रोडक्ट लेड ग्रोथ ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगती है especially being in SaaS and technology company versus a sales driven approach कि हम सेल्स चैनल है उसके थ्रू हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करके हम सेल कर रहे देखिए सर, ऐसा है, आप एक सेल्स वाले से पूछ रहे हो कि प्रोडक्ट लेड बेटर है या सेल्स लेड हैं बेटर है, ठीक तभी है. आपसे पूछ रहा हाँ, हूँ लेकिन लेकिन मैं इसका आंसर देता हूँ, ठीक है. हाँ हम, मतलब द वे अ सेल्स प्रोफेशनल इज कंडीशन, हमको हमको हमेशा ड्राइविंग सीट चाहिए. वी वांट टू हाँ लीड द बिजनेस, लेकिन अब हाँ ना सिचुएशन बदल गई है सर, ठीक हाँ है. अब पता है, वी चूज आवर प्रोडक्ट, हम्म ठीक है. हम प्रोडक्ट को चूज करते हैं, हम सेल्स वाले को चूज नहीं कर रहे हैं. और हम्म आप ये एक रियलिटी है. हम्म पहले पहले पीपल यूज्ड टू बाय फ्रॉम पीपल एंड स्टिल पीपल बाय फ्रॉम पीपल. हम्म लेकिन क्या आप राइट पीपल हो उस राइट प्रोडक्ट के लिए, वो सवाल है. हम्म तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट लेड इज द फ्यूचर, एंड इट विल बी कॉम्प्लीमेंटेड. ऐसा नहीं कि सेल्स लेड डाई हो जाएगा, नहीं, कुछ डाई नहीं राइट होगा सर, ठीक है. राइट Product led growth will be complemented by sales sales support. हम्म क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आगे नहीं बढ़ सकता अगर उसको सेल्स पुश नहीं कर रहा हो. हम्म चाहे, मतलब इवन इफ यू टेक फेसबुक ऑल्सो, ठीक है. हम्म आज की डेट में एवरीबडी वांट्स टू एडवर्टाइज ऑन फेसबुक, एवरीबडी वांट्स टू एडवर्टाइज ऑन इंस्टाग्राम. सो इफ राइट दैट इज द केस, ओके, then I want to ask one very simple question: why do they need a sales team? राइट करेक्ट. एंड मतलब ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, आप कोई भी प्रोडक्ट, है ना, हम्म व्हाट्सएप,
देयर आर यूज केसेस आपको, और ये प्रोडक्ट लेड ग्रोथ पता है कहाँ से आ रही है? मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे। ये ये आ रही है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की वजह से। हम्म इसके पीछे मैं आपको बहुत सीधा साधा कारण बताता हूँ। पहले क्या होता था, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए होता था, तो आप फॉर्म भरते थे, एक सेल्स वाला कॉल करता था। अब हम्म आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करिए, आप सेल्स वाले से बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आप इतना हम्म इन्फॉर्म्ड हो कि आपको पता है हम्म कि मुझे कौन-सा कार्ड चाहिए। तो करेक्ट अब, और ये पता है ये प्रोडक्ट लेड ग्रोथ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप हर हर सेल्स के पीछे एक सेल्स टीम को नहीं लगा सकते, क्योंकि वो हम्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सही नहीं है। अब से फॉर हम्म एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं जिसकी कीमत $100 पर एजेंट है, ठीक है? हम्म मेरे एई कोटा कैरी कर रहे हैं $1 मिलियन का। हम्म अब मेरे पास एक इंक्वायरी आई, बोला यार मुझे एक एजेंट चाहिए, हम्म तो क्या मैं यहाँ पे सेल्स टीम को लगा दूं? नहीं सर, हम्म वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो $100 की कितनी डील लाएगा तब वो 1 मिलियन कर पाएगा, ये बताइए आप मुझे। हम्म तो आज की डेट में एवरी सेल्स कंपनी दे हैव एंड दिस प्रोडक्ट लेड ग्रोथ, इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्स कहीं जा रही है, सेल्स विल लीड द ग्रोथ, हम्म बट प्रोडक्ट ऑन द ग्राउंड, it will, companies are making it so easy for their consumers that you don't need a sales intervention yaar. Matlab for हम्म certain amount of agents, for certain complexities, for certain use cases, you just simply go and swipe your card, build your system within 15 seconds, build your platform yeah within 15 seconds, and you're up and running. right उसके लिए मैं सेल्स का इंटरवेंशन क्यों लाऊं? दैट इज इन माय ओपिनियन इट इज द बेस्ट थिंग, एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली टॉकिंग अबाउट दिस, दैट हाउ डू दे क्रिएट अ सेल्फ सर्व मॉडल which is based on product led growth. लेकिन right इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्स टीम कहीं जा रही है, बस हम्म सेल्स टीम का वो जो इंटरवेंशन है, जहां पर कंज्यूमर ऑलरेडी empowered है टू मेक दैट बाइंग डिसीजन, वहां हम्म पर सेल्स वाले नहीं चाहिए। हम्म So I think that's the whole perspective between product led and sales growth, sales led. right right great sir thank you for sharing that ठीक है अब मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है मैं बात करते करते मेरे को लगता है 1 1.5 घंटा और निकल जाएगा इतनी बातें करने को अब हम एक दो क्वेश्चंस हैं ऑडियंस में जो पूछना चाह रहे हैं अगर इफ एनीवन इज देयर हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम निशांत वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन निशांत आई मस्ट टेल यू दिस मतलब मुझे काफी अच्छा लगा काफी इंसाइट्स मिली एंड वन ऑफ द क्वेश्चन वी हैव इज फ्रॉम जावेद अख्तर so the question is, when do you think CSM should be involved in your best opinion? ये शायद उस सवाल से आ रहा है जो हाँ, आपने राइट, आपने मैंने कहा था, कंजम्पशन एंड रिटेंशन, करेक्ट? करेक्ट, करेक्ट, तो उस टाइम आई पे हाँ, थिंक हाँ, आई थिंक सीएसएम, मेरे हिसाब से, अगर आप एक सेल्स इकोसिस्टम को देखो, करेक्ट, पता है, मतलब दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, मेरी अंडरस्टैंडिंग पता है क्या कहती है? आपकी एक तरफ, मतलब योर सेल्स स्टार्ट फ्रॉम योर एसडीआर टीम, then you have your account executive who are your closures, then you have your pre-sales or your solution consultant, and then you have your CSM. ये चार पार्टीज क्रिएट्स योर सेल्स मोशन। अब इनमें से हम ये नहीं कह सकते कि किसका रोल बड़ा है किसका छोटा है, तो कहीं ना कहीं ये एक रिले रेस है। और इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है? हम सबने 4x100 की रिले रेस देखी है, करेक्ट? हम्म, उसेन बोल्ट का वो जो हिस्टोरिक मोमेंट है जब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, तो क्या केवल उसेन बोल्ट को ही गोल्ड मेडल मिला था क्या? नहीं ना, उन चारों को मिला था ना। अगर करेक्ट, उसेन बोल्ट तो कभी नहीं जीता, वो आखिरी में था, लास्ट 100 मीटर्स में था, करेक्ट? अगर जिसने स्टार्ट की वो वहीं पर हम्म, ही गिर जाता या वहीं पर ही करेक्ट, वो चेन टूट जाती, तो उसेन बोल्ट को वो गोल्ड मेडल कहाँ मिलता? हम्म, वो दूसरे पड़ाव पर जिसने दूसरे से तीसरे को दिया, तीसरे ने तब उसेन बोल्ट को दिया। हम्म, तो यहां पर वो तीनों के तीनों, वो चारों के चारों उसेन बोल्ट हैं। हम्म, तो मेरे हिसाब से सीएसएम्स हो, चाहे वो एचडीआर्स हो, चाहे अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स हो, चाहे सॉल्यूशन कंसल्टेंट हो, दिस इज ओनली वन टीम। व्हाइल आई अंडरस्टैंड दे रिपोर्ट इनटू डिफरेंट फंक्शंस ऑल टुगेदर, लेकिन जब तक यहां पर एक कोहेसिवनेस, एक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि देयर इज ओनली वन गोल एंड वन गोल फॉर ऑल ऑफ अस, हम्म, एंड देयर इज वन विजन,
आई थिंक फिर ये सवाल शायद रिडंडेंट बन जाएगा कि कब हमको इन्वॉल्व होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए. राइट, ग्रेट, थैंक यू. कोई और किसी का अगर क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो, हम बस 1-2 मिनट ही और हैं. इन द मीन टाइम निशांत, मेरे पास एक रैपिड फायर राउंड है आपके लिए, और जी. मैं फटाफट से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा. आप को एक दोनों में से एक ऑप्शन बताना है विदाउट थिंकिंग टू मच ऑन दैट. तो आई विल जस्ट स्टार्ट विद द रैपिड फायर राउंड. द फर्स्ट इज डू इट ऑल और गेट इट डन. Get it done actually. क्वांटिटी और क्वालिटी. Quality always. ट्रेनिंग फ्रेशर्स और रिक्रूटिंग एक्सपीरियंस पीपल. Well, this is tough, correct? But I think we all were You fresher have at to. one point of time, correct? So I think, Okay. I think I'll bet somewhere, Okay. Hard work in or smart between. work? Okay, very difficult question. Hard work is important to do smart work also, correct? You can't do smart work without knowing hard work. So I think somewhere in the middle, yeah, somewhere to be very honest. But I think Okay. smart work, again, smart work has a negative connotation to it. So somewhere I'll say that, hard work will always lead to smart work. Work from home or office? Okay, I am strong proponent of office. Please, Okay. please, don't. Okay, but Okay. I think especially in sales, is only owing to the peer learning environment. Hmm. Correct. Hmm. Correct. Once you sit down with somebody, this is my personal opinion. Okay, Hmm. I'm not saying this is my organization's opinion, but this is my personal opinion that Hmm. working from office is the best thing which can happen to any निशांत, sales guy. हम डिस्क्लेमर डाल देंगे, कोई बात नहीं नीचे के all views are personal. हाँ, नहीं. 10 to 6 job or flexible hours? Flexible hours. Okay. Inbound or outbound lead? Uh, okay, it is outbound because even on inbound, you tend to do outbound because inbound will not get you the right persona always. Okay. Incentive or no incentive? Oh, without incentive, I'll not be in sales. Thank you so much. Okay. Sorry. Yeah. Cold email or cold calling? In my opinion, call comes first, then email. In Okay. India, okay, again, market differentiation, correct? If I'm sending out into European Union an email, so it's gonna be my email first cadence. If I'm doing it in US, it's gonna be my email first. If it's in India, I'll call first, then email. Okay. Money and money or versus recognition या promotion, दोनों में से क्या चूज करना चाहेंगे? सर इसमें आप एक और चीज जोड़ दो, है ना? मनी हाँ. वर्सेस रिकॉग्निशन और प्रमोशन और पावर. आई विल चूज पावर. Okay. Alright. अब मेरे पास देखो हैम्पर नहीं है देने के लिए. कोई दिक्कत नहीं For सर. participating in this rapid fire round. एक लास्ट क्वेश्चन है यश का, यश शर्मा. सर, हाउ टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल टेरिटरी बेटर लाइक यूएस? आई थिंक यश, ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट ने कवर कर लिया था उसके अंदर वाइल. तो आप अगर पिछला पूरा आपने नहीं देखा है पार्ट, तो जब देखोगे ना तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इनसाइट्स अबाउट हाउ यू कैन टारगेट यूएस मार्केट स्पेसिफिकली व्हाइल सिटिंग इन इंडिया. तो आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा उसमें. आई थिंक ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं सारे हमारे आज के क्वेश्चंस दैट वी वांटेड टू ask Nishant, and thank you so much Nishant for being a part of it and giving us your time. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स लगी, and thank you everyone in the audience for listening to it. I hope you find it worth your time. Thank you, Nitin. I think the pleasure was all mine. Correct. Yeah. You gave me a platform wherein I can utilize what I do the best. So no no Sure. harm done. Yeah. Okay, Thank great. you so Well, much. thank you so Thank you much. so much. Thanks again. Bye bye. Thank you.